पहले वाइट कर लेते बाद में हाँ ऐसे वाइट कर अरे अभी तो लाइट चालू है नहीं यहाँ पे सर यहाँ सेंटर में क्या नहीं भाई When walking there of the beach or walking down the street to another man. Celebrating 40 years of celebration today. हेलो हाय नमस्कार मेरा नाम दीपक फराशर है एंड आई एम हियर एट द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस। मैं यहाँ आया हूँ मुबारकबाद देने के लिए क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया को 30 साल हो गए हैं। इट्स द 30th एनिवर्सरी। एक बहुत ही खास एडिशन आने वाला है जिसकी कॉपी आपको तुरंत बुक करनी चाहिए। मेरा बॉम्बे टाइम्स के साथ रिश्ता 1976 से जुड़ा हुआ है क्योंकि उस वक्त मैं फर्स्ट मिस्टर इंडिया बना था और मेरा ताल्लुक टाइम्स ऑफ इंडिया से उस वक्त से बना रहा। ये मेरे लिए एक मेरा अपना घर है और इससे ज़्यादा खुशी किसे हो सकती है कि 30 साल गुजर गए, वक्त का पता ही नहीं चला। वो कहते हैं ना मेरा नाम जोकर का एक बहुत बड़ा कुछ 3-4 पंक्तियां हैं। कल हम हो ना हो, कल हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। ठीक उसी तरह नए नए लोग आएंगे, हमारे बाद भी आएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया को चलाएंगे एंड टाइम्स ऑफ इंडिया इज one of the best newspapers. So many congratulations to Times of India. Thank you so much. Okay. Bombay Times. एक बार फिर से लोग Okay. Congratulations Bombay Times for completing 30 years. Okay. Yes sir. हेलो हाय नमस्कार मेरा नाम दीपक फराशर है और मैं यहाँ मौजूद हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में टू सेलिब्रेट 30 हेलो हाय नमस्कार मेरा नाम दीपक फराशर है। मैं यहाँ मौजूद हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में टू सेलिब्रेट द 30th एनिवर्सरी ऑफ बॉम्बे टाइम्स। Bombay Times is the best news which one can follow. It's full of entertainment, excitement, and I keep waiting for each edition. याद रखिएगा कल एक बहुत ही जबरदस्त एडिशन आने वाला है जिसे आप सबको खरीदना है। So book your copies now. This is Deepak Parashar wishing everybody all the best. Namaskar. Thank you. Thank you. Thank you sir. What do you say both of you? Thank you. Bombay Times complete 30 years. What like to say about Bombay Times? I am just so happy to be here. Like it's these special days that I feel like I'm so happy to be an actor because I grew up reading Bombay Times more than any other newspaper, and I would always look forward to finding out कि कौन सा TV show, cartoon show कितने बजे आने वाला है. So it was just like that was my newspaper routine growing up. Same. I would always, the first newspaper that would be on my table was Bombay Times, and I'm very used to Bangalore Times also because I'm from Bangalore. But for me, just to get up to date news about the industry, and obviously we are part of the industry, so that is just to know about what's going on, what new films are coming, which new actors are coming into the industry. Also, I used to cut out pictures of Hrithik Roshan growing up, and Bombay Times would obviously have the most of them. So thank you for facilitating my obsession, my childhood obsession. Thank you so much, BT. Thank you. Thank you. Thank you.
थोड़ा साइड आइए। Only she can tell me. So you are coming. So you have to just qualify. Okay, now Thank please you. go on, please. Let's see. Bye bye. Yeah, let's bye. Let's do bye. Good to see you. Thank you. 30 years to Bombay Times क्या कहना है Bombay Times को? I'm super happy and super excited. मैं बॉम्बे टाइम्स के साथ I think बहुत टाइम से connected हूँ. Now I have two best friends in Bombay Times. Like they are my heartbeats. One is Vinay, one is Onkar. So I came here just to meet them and plus to celebrate 30 years of this experience. And it's always good. Like I'm happy. The moment I entered, I think I saw Akshay Kumar sir, who was I think doing something for that. I'm happy and excited. Let's go now. Oh, you guys know that? Yeah. Sweet. Yes, it's going good. Now there'll be a major twist that's gonna happen. Wait for it. You'll get to know. In this year, have you seen Yeah. that? Yeah. Like it, क्या feel है? So, Pushpa 2, it was a good movie. The visual part of it, आँखों को जो बोलते हैं ना कि मजा आ जाए देख के, visually it was amazing. Story could have been better, like the story part. Apart from that, songs were okayish. People were like hooting and shouting for Thappad Marungi song. It was a good, like it I think a hook song. जो लोग एक बार सुनते हैं उसको repeat में गाने लग जाते हैं. So overall, it was a good comedy movie. Little lengthy, but it was a good movie. Thank you. Have a good day. सर थोड़ा सा आगे स्टार्ट यहाँ से कीजिए सर थोड़ा उधर यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड थोड़ा इस साइड आइए ये इस साइड बोलिए ये यहाँ पे देखिए Yeah, very nice. यहाँ पे आइए तो बाइट बाइट अभी खाने के भी काफी बाइट्स आ गया है चलो रेडी मदान सबसे पहले बॉम्बे टाइम्स को 30 साल पूरे कंप्लीट हुए हैं यानी इस अनोखी जर्नी में एक सबसे खास बात है शुरुआती पल में ऐसा अखबारों से शुरू होता था कल्चर आज जो पेपराजी कल्चर में कन्वर्ट हुआ है एंड अब आपने किस बदलाव को देखा है मीडिया इंडस्ट्री में I think the media's started penetrating in places where it was never present fully. मुझे लगता है the media has become very intelligent और जो मैं देख सकता हूँ कि आजकल एक social awareness भी है, एक responsibility भी है. पहले ये था कि मीडिया और आर्टिस्ट के बीच में एक अंतर था, उनकी सोच अलग है. अब उनकी सोच एक साथ चलती है. सो आई थिंक जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, जितने हमारे आर्टिस्ट हैं, वो मीडिया के बिना इररेलेवेंट है और आर्टिस्ट के बिना मीडिया का कोई काम नहीं. तो आई थिंक जो साथ में वो चलते हैं, जो साथ में उनकी एक सिनर्जी है, दैट क्रिएट्स मैजिक. चाहूंगा तो ये सब पल आपको याद हो जब आपने पहली बार अपना किसी अखबार में कभी अपना पहली बार अपने आप को उसमें देखा हो क्या मेमोरीज आपको याद होती है? ओह आई थिंक बॉम्बे टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया को लेकर जो मेमोरीज है वो सारी इतनी इमोशनल है, मुझे भावुक कर देती है. क्योंकि जब मेरी पहली फिल्म आई थी ये साली आशिकी, और जब पहली मर्तबा मैंने अपने आप को बॉम्बे टाइम्स फ्रंट पेज पे देखा, तो एक बहुत ही अनोखा पल था और उमंग भरा पल था मेरे लिए. तो बॉम्बे टाइम्स एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मैं हमेशा आउट ऑफ द वे जाता हूँ. जैसे कि आज जो भी काम था उसको साइड में कर दिया क्योंकि ये बॉम्बे टाइम्स का इवेंट है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक ऐसा रिश्ता है हमारा. तो आई थिंक इट्स द मोस्ट वंडरफुल वे टू रीच आउट टू द ऑडियंसेस जिनके लिए हम काम करते हैं. एंड थैंक यू एंड माई सलाम्स एंड ऑल माई लव टू द बॉम्बे टाइम्स टीम, to the Times of India group altogether. So
only respect in my heart, and I would aim for and love for a long association of love and trust with them. सर 2025 को मद्देनजर रखते हुए मला आप प्रोफेशनल वाइज किस तरह से देख लो, हैदराबाद में भी आप रिसेंटली कर रहे थे, हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू ईयर? पहली बात तो सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत के बिना कुछ नहीं है। तो सेहत का ख्याल रखना है, अपने जितने करीबी लोग हैं, जितने हमारे खास जन हैं, उनके साथ वक्त बिताना है। और उसके अलावा मेनली कुछ कमाल की फिल्में करनी है, कुछ कमाल के किरदार निभाने हैं, और कुछ बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं हिंदी में, डाउन साउथ भी। तो वेरी एक्साइटेड। कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में मैं बहुत जल्दी मेंशन करूंगा, जो बॉम्बे टाइम्स ने ऑलरेडी कवर किया है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है। समथिंग वेरी स्पेशल जो आने वाला है, तो उन सब की प्रेपरेशन में, उन सब के शूट्स में मेरा ज्यादातर वक्त उसी में जाएगा। सर 1994 में काफिला शुरू हुआ था, 2024 हो चुका, 30 साल हो चुके बॉम्बे टाइम्स को, क्या कहना? सबसे पहले मैं बॉम्बे टाइम्स को उनके 30th बर्थडे की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूँ, और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एंड टू बी अ पार्ट ऑफ बॉम्बे टाइम्स फैमिली। बहुत बार ऐसा होता है कि बीइंग एन एक्टर, आप मीडिया इज द सोर्स जो आपको लोगों तक, घर घर तक पहुँचाता है। सो आई थिंक बॉम्बे टाइम हैज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट, एंड आई मेक श्योर कि मैं ऐसी मेहनत करता रहूँ और बॉम्बे टाइम का ऐसा रिलेशन अच्छा रहे। But it's a great journey, and I wish all the luck and love to Bombay Times for completing 300 years, 3,000 years. Thank you so much, sir. Thanks, sir. Good to see you, ma'am. Hi. Yes, sir, Bombay Times 30 साल हो चुके इस काफिले को, क्या कहना चाहोगे बॉम्बे टाइम्स के बारे में? First of all, I would say 30 years. Oh my God, 30 years, 3 decades. Congratulations, Bombay Times. Of course, it's just marvelous what you guys do, the way you promote stories, talent, art, films. So, bus keep supporting artists, keep doing the amazing work that you all are doing, and all my love. I'm Sheena Chauhan, and congratulations on completing 30 years, Bombay Times. Thank you so much. Thank you. अरे कैसे नहीं आ रहा है बताओ ना। नहीं अच्छा आ रहा क्या मस्त लग रहा है। है। यहाँ पे प्लेयर आ रहा है लेफ्ट में, यहाँ पे सॉरी टू सी सुन लिया आपने 30 साल हो चुके बॉम्बे टाइम्स को, 3 डेकेड्स, क्या कहना चाहोगे बॉम्बे टाइम्स के बारे में? मतलब I think I'm very grateful personally. I think every actor is, every person is, because मतलब it's very important. मैं मेरे को exactly समझ नहीं आ रहा मैं शब्दों में कैसे बोलूँ, but of course Bombay Times has been a part of my life, a very important part of my life, and I'm very grateful and I'm very happy that they've completed 30 years. सुबुल, एक जर्नी थी जब मीडिया की, आपकी इमली की जर्नी, और एक बिग बॉस के बाद की जर्नी, और एक शो के बाद की जर्नी। ये 3 जर्नी में अलग-अलग मीडिया में आपने अलग-अलग मीडिया से फेस किया। हाउ डू यू सी जर्नी? क्योंकि मैंने काफी क्लोज के आपको तीनों जर्नी में देखा है। पहले मुझे थोड़ा कम भाव देते थे, अब मुझे बहुत भाव देते हैं। अरे it is true यार। Yes, yes. हाँ जी, sorry। तो बात करें पर्सनली, आपकी पर्सनल एक मोमेंट्स के बारे में, जब आपने पहली बार अपने आप पेज पे या फिर किसी मीडिया पेज पर पहली बार देखा, तो क्या आपकी फीलिंग्स थे, क्या इमोशंस थे? पहला जब मैंने मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू देखा था, तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब सबसे पहला यही था। उसके बाद फिर मुझे समझ आया कि अच्छा, बहुत सोच समझ के बोलना रहता है, ऐसा कुछ होता है। सो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग, एंड आई थिंक वो काफ़ी अच्छा जा रहा है फिलहाल। एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, कहीं ना कहीं बिकॉज़ भी बहुत सही जगह फॉलो कर रही होंगी, तो नहीं कर रही हैं आप ऐसे कैसे अज्यूम कर सकते हो? थोड़ा बहुत नहीं ना कहीं? नहीं। चलो दूसरी कॉल पे आ रहा हूँ। पुष्पा 2 को आपने देखी हो? मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ।
तो फिर आप क्या की तरफ से और आपके फैंस के लिए वो बताएं। मैं अभी यही बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकती बट है कुछ बहुत इंटरेस्टिंग। नया साल बहुत अच्छा होने वाला है एंड आई जस्ट वांट यू ऑल टू बी पेशेंट बिकॉज आई एम वेरी पेशेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो मच अभी तक और ऐसे ही बस आगे प्यार देते रहिए। थैंक यू। हर्षवर्धन, आपसे जानना चाहूंगा कि मीडिया का कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी लाइफ में जिस तरह मीडिया ने घर घर तक आपकी मूवीज को प्रमोट किया है, इतना प्यार मिलता है लोगों से। अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको बोलना होगा, हाउ मीडिया इज इम्पोर्टेंट फॉर यू? मीडिया इज एज इम्पोर्टेंट एज अ ट्रेन और अ प्लेन। जब हमें अपने काम की जगह से अपने घर जाना होता है तो जाना तो सबको है, लेकिन जो जरिया हो वो हमेशा आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब हम लोग अपने काम से अपने अपने घर जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, कैसे जाते हैं? ट्रेन से जाते हैं। तो मीडिया इज द ट्रेन। अगर ये नहीं होगा तो हम बस सोचते रह जाएंगे, पहुँचेंगे नहीं जहाँ हमें पहुँचना है। सो दिस इज द ब्रिज बिटवीन टू एंटिटीज। सो आई थिंक इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और किसी का रोल होता नहीं। अच्छा, जानना चाहूंगा आपसे कि 30 साल पहले और अभी की मीडिया में आपको क्या फर्क लग रहा था, क्या बदलाव आपको लगते हैं जो हुआ है? ब्रांच जैसे एक पेड़ होता है और उसके शुरू में ब्रांचेस कम होते हैं और बाद में सालों के चलते चलते ब्रांचेस बढ़ जाते हैं। आई थिंक वैसे ही फैल गए, ब्रांचेस बढ़ गए, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी और जो इमोशन है वो सेम है कि चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाना, लेकिन बस ब्रांचेस ज़्यादा हैं। हर्षवर्धन, आपसे जानना चाहूंगा, कल से एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है, आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे, जो एक कपल है विवेक करके, जो कल उसकी मृत्यु हुई और आपकी मूवी से काफी रिलेट कर रहे हैं सनम तेरी कसम से, एंड कोलैज कर रहे हैं रियल लाइफ और रियल लाइफ इस तरह से होती है। आपने वो तस्वीर देखी रहेगी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे है फोटो। नहीं Yeah, thoda, it's a little sensitive for me to comment on it, so I would like to just let it be and focus on the happy part. How you are looking forward 2025? Sanam Teri Kasam 2 is coming. People were waiting for 1 के बाद इतना वेट किया लोगों ने, 2 आ गई, अनाउंसमेंट हो चुकी है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? मेरे डैडी अगर प्रोड्यूसर होते ना, मैं अभी जवाब दे देता सारे। लेकिन सैडली वी आर जस्ट एम्प्लॉइज, हमें हायर किया जाता है, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर हमें बोलते हैं जब, तो हम चले जाते हैं काम पे, तो जब भी ये लोग बोलेंगे मैं चला जाऊँ। हाउ हैप्पी यू वर जब आपको पहली बार पता चला कि दूसरा पार्ट आने वाला है, क्योंकि पहले पार्ट को जिस तरह टीजर के बाद लोगों के दिल तक पहुंचा एंड एक लंबे समय के बाद प्यार मिला, मैंने देखा था। उसके बाद जब 2 का वेट हुआ तो और प्यार मिलने लग गया, पर आपको जब पहली बार पता चला तब क्या? मैं ऑडियंस की तरफ में थोड़ा रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे तक तो बात जल्दी पहुँच गई थी, बट डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक बहुत लेट पहुँची बात, और क्योंकि वो लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे शायद नहीं रहते हैं, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि उन तक बहुत सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आपका मैसेज पहुँचने में। सो आई होप कि उन तक ये बात और ज़ोर से पहुँचे, और बिकॉज अब उनके ऊपर भी काफ़ी सारा प्रेशर है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी कहीं और है। सो आई थिंक व्हेनेवर दे आर रेडी, आई एम रेडी। Happy New Year to all of you from my side, and I pray and wish कि जो आपके मन में है, जैसे मेरे मन में बहुत कुछ था इतने सालों से, और मैंने हर एक छोटी चीज़ की तरफ थोड़ा रोज काम किया है। आई होप आप लोग भी अपने गोल्स की तरफ धीरे धीरे हर दिन बढ़ते रहें, और 25 में आपको सब कुछ Thank you.
Starting from here. Starting from here. Thank you. Thank you, same here. यार बॉम्बे में, मुंबई में हम सबकी सुबह बॉम्बे टाइम से होती है और बचपन से मुझे याद है, अगर मुझे कुछ जानना है कि मुंबई में क्या चल रहा है या बज़ क्या है, लोग क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, तो मैं बॉम्बे टाइम्स ही पढ़ता था सुबह सुबह। इनफैक्ट मैं एक बात बताना चाहूँगा, सबसे पहले बॉम्बे टाइम्स की जो एनिवर्सरी पार्टी हुई थी उसमें टेलीविज़न से बहुत कम लोगों को इनवाइट आया था। मैं खुशनसीब था कि मुझे इनवाइट आया था। यॉट पर पार्टी हुई थी, बहुत बहुत मज़ा आया। सो आई हैव वेरी वेरी फॉन्ड मेमोरीज। क्या बदलाव आपको लगता है मीडिया का, जो उस 30 साल पहले या फिर अभी की मीडिया में क्या बदलाव आपको नजर आता है? मुझे लगता है आजकल अच्छी बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और सभी मीडिया पर्सन बन सकते हैं। पहले कुछ ही रिपोर्टर्स हुआ करते थे, उन लोगों को हम कभी कभी पर्सनली भी जानते थे, लेकिन अब कोई भी कहीं भी बैठ के हमारे ऊपर विशेष टिप्पणियाँ मार सकता है। लेकिन एक किस्म से ठीक है, क्योंकि हम पब्लिक पर्सनालिटीज़ हैं, हम अपने आप को परोसते हैं कि आप हमें जज करें, हमें पसंद करें तो हम बहुत खुश होते हैं, अगर नापसंद करें तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रखते हैं बस। आपने जिस तरह एटली सर के साथ काम किया 2025 में, ऐसे कौन से साउथ डायरेक्टर है जिसके साथ आप काम करना पसंद? सुकुमारन सिंह के साथ काम करना चाहते हैं और एक दो डायरेक्टर्स हैं जिनका नाम मैं अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, लेकिन राजा मौली सर, जिगर ठंडा, XX, मैं ना साउथ फिल्म्स की डबिंग करता हूँ। अजीत सर की वॉइस को मैं डब करता हूँ, नागार्जुना सर की वॉइस को मैंने डब किया है और लॉरेंस सर के वॉइस को मैंने डब किया है। तो है ना, मुझे अभी रिसेंटली विजय सेतुपति सर की वॉइस को मैंने डब किया था एक गोल्ड माइन टेलीफिल्म से महाराजा फिल्म में, तो मैंने डब किया था। बहुत मज़ा आया था, बहुत सीखने मिलता है उसमें कि उन्होंने इस सीन में ऐसे रिएक्ट क्यों किया, ऐसे उन्होंने क्यों बोला, तो वो समझना पड़ता है मुझे और फिर मेरी आवाज़ देनी पड़ती है और सीन का सारांश समझना पड़ता है और एग्जैक्ट वर्ड्स डालने पड़ते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता है वो करती है। तो मेरे बहुत फेवरेट डायरेक्टर्स हैं, मैं अभी सबका नाम याद नहीं आता। सर एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी गंभीर सवाल है जो आप पे एलिगेशंस लगे गए हैं, ब्रेकअप को लेके रिलीजन्स के एलिगेशन लगे, ये गंभीर सवाल है। आई डोंट नो यू आर गोइंग टू आंसर इट और नॉट, बट आपको अगर कुछ टिप्पणी देनी हो या फिर व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दैट? देखिए यार, ऐसा है ना, मैं हमेशा ये सब, एक मिनट, देख मैं हमेशा ये समझता हूँ कि डिग्निफाइड साइलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है जब रिश्ता हमारा चल रहा होता है ना, हम बहुत प्यार करते हैं और कुछ वजहों से वो रिश्ता टूटता है। अभी उस रिश्ते के बाद अगर हम उस पर कुछ भी कहें तो ये गुंजाइश रहती है कि हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ के कुछ अलग मतलब दिया जाए। उस वजह से क्या होता है, जिनसे हमारा रिश्ता था और उनके फैमिली मेम्बर्स को बहुत दुख पहुंचता है। तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा, ना रिश्ते में रहते हुए मैंने उन्हें दुख पहुंचाया, ना रिश्ते के बाद मैं उन्हें कोई दुख पहुंचाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं जनरली डिग्निफाइड साइलेंस मेंटेन रखता हूँ। इस बार क्या हुआ, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कुछ कहा, इनफैक्ट रुक, ये देख, ये पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ कहा, उनको बकायदा पूछा जा रहा है कि रिश्ते के वजह से, ये बोल रही है कि रिश्ते की वजह से कुछ नहीं था, इनकी एक्सटेंडेड फैमिली अच्छी थी, खुश थी,
तो हम क्या ही बोलें, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, Religion was never a major factor. रिलीजन वॉज नेवर एन इशू विद अस, ठीक है, But yeah, I told him लेकिन फिर वो कहती है कि हमने ये पहले ही कह दिया था कि रिश्ता नहीं बदलेंगे। अरे ना हमने ना उनको कभी कहा गया रिश्ता बदलने के लिए, ना मुझे कहा गया मेरा रिश्ता बदलने के लिए। हम तो मजाक में ये कहते थे कोई रिश्ता नहीं बदलेगा, हमारे पेट्स भी रिश्ता नहीं बदलेंगे, शक्ति शक्ति पुनिया ही रहेगी, बगीरा बगीरा कहानी रहेगी। तो यार इस नॉन इशू को मिस रिप्रेजेंट करके एक इशू बनाया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मत कीजिए, क्योंकि हम पब्लिक पर्सनालिटीज़ हैं, हमारी फैमिली नहीं है। माय फादर ये डिज़र्व नहीं करते कि उन्हें फ़ोन करके कोई अपशब्द कहें या कुछ गलत कहें, वो डिज़र्व नहीं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यार जल्दबाजी में गलत फहमी नहीं फैलाए, बस। कौन चिल्ला रहे? थैंक यू वेरी मच।